Assalamu alaikum. Now we have to do question number exercise 3B, question number 7. So according to this question number 7, they are saying expand the following expressions. Look here, this expression 1 by 5a plus 3 by b whole square. First term plus second term whole square. Okay. Which identity is used here? The first identity is used here. And always you know how we have to open the first identity. First term square plus 2, first term, second term plus second term square. Clear? So first of all, here I have to write first term. So it is 1 by 5a. Again, here again, I have to write first term. That is 1 by 5a. What is the second term? 3b. So here, look here. First term square plus 2, first term here. Which term I have to write? Second term, and that is 3b. Again, I have to write it here 3b. Okay. Now we have to open. Look here. Whenever we have to take the square, it means we have to multiply the same number 2 times. Here the fraction is given. So first we have to multiply numerator and then we have to multiply denominator. So 1 into 1, it is equal to 1 and 5 5s are 25. And when we have to multiply by variable, always remember their power will be added. So a multiplied by a is equal to a square. Is it clear? How we have to multiply fraction and how we have to multiply variable, is it clear? Okay. Now comes to the second portion here. We have 1 by 5 and this one is 3. So 3 multiplied by 1, we have to multiply numerator with numerator. So 3 1s are 3 and 3 1s are 3 and 3 2s are 6. So here we have to write 6 and it is divisible by 5 because denominator is 5. And now we have to multiply a and b. So it is equal to ab. Comes to the third part. The third term, that is 3. 3 3s are 9. And again, we have to take the square of this variable. Okay. And that is your answer. 1 by 25 a square plus 6 by 5 ab plus 9b square. Clear? So this is question number 7, part A. I think so it is clear how we have to multiply fraction and how we have to multiply variable. Now we move towards the second part of this question number 7. Okay, according to this, again, they gave us the first identity 1 by 2c plus 2 by 3d whole square. So here, first we have to write the first term. So it is 1 by 2c whole square. Again, we have to write the first term, that is 1 by 2c. Here we have to write the second term. And here in this expression, 1 by 2c is the first term. And what is the second term? That is 2 by 3d. So here I have to write 2 by 3d. Again, here I have to write 2 by 3d. Okay. I just change the form. Okay. First term square plus 2, first term, second term plus second term square. Again, we have to use the same. First, we have to multiply the numerator. Numerator is 1. So 1 into 1, 1. 2 2s are 4. And c multiplied by c, it is equal to c square. Okay. Now we move toward this. Here we have 2. This 2 is common as given in formula 1 by 2c. And that is 2 by 3d. This 2 is at the denominator. This is 2 at a numerator. So we have to cancel these 2. Okay. We have to cancel these 2. And now it remains here in numerator we have 1 and here we have 2. So it remains 2 by 3. Okay. Look here. This 2 will cancel with this 2. Okay. First of all, I have to cancel. So this one will be clear to you. Look here. Here, this 2 will be cancelled with this 2. Okay, this 2 will be cancelled with this 2. Just like this 2. Nothing, so it is visible this line. Okay, will cancel with this 2.
Yes, this two. Okay. This 2 will cancel this 2. The remaining will be 1 and 2. So it becomes 2 by 3. Okay. It becomes 2 by 3. And we have to multiply C with D, that is CD. Now move towards the last term, that is plus 2 2s are 4 and 3 3s are 9. And D multiplied by D, and we have to, what shall we have to do? We have to take the square of D. So D multiplied by D is equal to D square. So our answer is 1 by 4 C square plus 2 by 3D plus 4 by 9. Oh, sorry, 2 into 2. 2 2s are 4. So we have 4 by 9 D square. It is clear? Because when we have to multiply 2 with 2, we will get 4. And 3 3 is a 9. So this one is, our answer is 1 by 4 C square plus 2 by 3 CD plus 4 by 9 D square. And I think so it is clear how I will cancel this 2 with this 2. Okay. Now we move towards the third part. Okay. Now, question number 7 has only 2 parts. Now we move towards question number 8. According to this, expand. And here, look here. First term minus second term whole square. Here, which identity is given? Because here negative sign is here. This identity is called second identity. And how we have to open? First term square minus 2, first term, second term plus second term square. So here we have to write the first term. The first term is 3 by 2 and variable is age. Okay. Again, I have to write the first term, that is 3 by 2 age. And here I have to write the second term, that is 5K. Okay. 5K is your second term. In the center, I have to put this negative sign because of this second identity. And when we have to use the first identity, in the center, we have the positive sign. So 3 3s are 9 and 2 2s are 4. H multiplied by H, it is equal to H square. Okay. Now we have to come to the center portion here. We have this 2 is here in the denominator, but this is on the numerator. So this 2 will be cancelled with this 2. Now remaining will be minus 3 5s are 15. So we have to write 15 or H multiplied by K, it is equal to HK. Now move towards the third part, and that is 5 5s are 25. And K multiplied by K, it is equal to K square. Okay. So it is equal to 9 by 4 A square minus 15 HK plus 25 K square. This is the question number 8 and our first part. Okay. Question number 8, first part. Now we move toward the second part of this question. It has again only 2 parts. Now becomes minus 6 by 5 and minus 3 by n. Don't be confused this minus sign. Just you have to put it here. Because in the first term, we have this negative sign. So we have to put 6 by 5 m. Okay. This minus sign is not with this. This one is given as when we have a second identity, we have to use this. Okay. So this minus sign we have to use in the center part. Okay. Is it clear? But this is with this first term. But here we just write 3n as a second term. Okay. So again here I have to write minus 6 by 5 m. Now becomes the second identity, that is only 3n. Is it clear? This negative sign is for your second identity. So here you have to just write 3n. And in the third place, obviously we are again write the second term, that is 3n. Okay. I just change the font size. Okay. Now just we have to open. So tell me, minus into minus, it becomes plus. 6 6 are 36. 5 5s are 25. M into m square. Okay. Now comes to here. Minus into minus, it becomes plus. So here we have to write plus. And again it has plus. Now, first multiply all the numerator. 3 2s are 6. 6 6 are 36 divided by 5.
and we have two variable m and n. Simply we have to multiply. And next, in the third place, we have 3 3s are 9, and that is n square. M square. Okay. So it becomes 36 by 20 plus 36 by 25 m square plus 36 by 5 mn plus 9 m square. This is how we have to open if in the first place we have negative sign. So don't be worried about just you have to use the same one. Okay. Now we move towards question number 9. Here question number 9. Here third identity is used. Okay. 6p plus 5, 5 minus 6p. But look here, in the first term, which is the first term in the first bracket? 6p. But which is the first term in here? 5. Again, here 5 is in the as used as the second term, or either यहाँ फर्स्ट टर्म 6p है, यहाँ 5 है, यहाँ सेकंड टर्म 5 है, यहाँ 6p है. इसका मतलब है थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज है. अब हम क्या करेंगे इसको? ओके, आई विल टेल यू. लुक हियर. अब ये देखिए, अब इसके साथ हमें फर्स्ट प्लेस में 6p ही चाहिए. तो जैसे क्लास में होता है कोई अगर बहुत ज्यादा शोर कर रहा है तो हम उसकी सीट चेंज कर देते हैं. सिमिलरली ये 6p के साथ नेगेटिव साइन है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट पे ले आएंगे. ओके. और ये जो 5 है इसको हम सेकंड पे लाएंगे, लेकिन लॉजिकली कैसे लाएंगे कि वी हैव टू यूज दिस कर्ली ब्रैकेट. ओके. कर्ली ब्रैकेट यूज किया. अब बताएं 6p के साथ क्या साइन है? माइनस. आई हैव टू पुट माइनस 6p. लुक हियर, व्हेन आई हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट, this round bracket, it is equal to minus 6p, and we need a minus 6p. Look at here, this one is plus 5. Okay, so if I put here plus, तो minus into plus तो minus होगा, तो minus into minus plus. फिर देखें फर्स्ट प्लेस पे 6p है, इधर 6p नहीं है, तो हमने उसको कैसे लाना है? We just put a curly bracket और 6p को हमने फर्स्ट प्लेस पे लेकर आए. जब हम फर्स्ट प्लेस पे लाए तो उसका साइन तो माइनस ही होगा, तो हम उसका साइन माइनस ही लगाएंगे. और 6p जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 6p ही होगा, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 प्लस 5 होगा. वो कैसे? ये देखें, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस. ये बात समझ में आई है? हमने माइनस का साइन सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के इधर किया, लेकिन हमने इसमें वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है. ये माइनस 6p है, ये प्लस 5 है. ठीक है. अब थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दे कर्ली ब्रैकेट को, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस राउंड ब्रैकेट. तो यहाँ फर्स्ट प्लेस आपके पास क्या है? 6p. यहाँ भी 6p है. यहाँ सेकेंड प्लेस पे क्या है? 5. यहाँ भी 5 है. और सबसे पहले क्या? प्लस, और फिर है माइनस. इन अदर वर्ड कि अगर हम सिंपल इतनी सी चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा कि हमारा ये थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी. ओके. अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोई साइन नहीं है. आई थिंक सो ऑल ऑफ यू नो, अगर कोई साइन हो तो विच साइन इज देयर? प्लस साइन इज देयर. अब मुझे ये कर्ली ब्रैकेट को खत्म करना है. ओके. तो मैं क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस कर्ली ब्रैकेट के साइन को इससे. तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? यस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू व्हाट? Yes, plus into minus is equal to minus. Again, here I put a bracket. Why I put a bracket, I will told you later. Okay. अब ये देखें, मैंने कर्ली ब्रैकेट को आराम से खत्म कर लिया. कैसे? मैंने इस प्लस के साइन को इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया. प्लस इंटू माइनस इट इज माइनस, और मैंने स्टार्ट में लगा दिया माइनस. ओके. क्लियर हो गया? अब ये जो माइनस का साइन है और ये जो है इक्वालिटी के फौरन बाद हमेशा यूज. ठीक है. जितने भी अब जितने स्टेप आप आगे मूव करेंगे इसको अपने साथ ही लगाना. सही हो गया. अब यहाँ आ जाए इधर. फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 6p. तो हियर यू हैव टू पुट 6p. और सेकंड टर्म क्या है? 5. हियर यू हैव टू पुट 5. देखिए कुछ भी चेंज नहीं है. 6p प्लस 5, 6p माइनस 5. ठीक हो गया. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल, हमने सब ये नेगेटिव साइन को बाहर निकालना. अब हमारे पास क्या होगा? इक्वालिटी माइनस. अब इसको हम वही वैसे सोल्व कर लेंगे. सिंपल, हमने यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा. 6 6 का क्या होता है? 36. यहाँ क्या आ जाएगा? p. और हियर आई हैव टू पुट स्क्वायर बिकॉज p इंटू p स्क्वायर. और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 5 5 25. ओके. एंड जस्ट हियर आई हैव टू पुट दिस स्क्वायर ब्रैकेट. अब देखें हमारे पास क्या? माइनस. अब मर्जी है तो अब चाहे ऐसे ही रहने दें,
विद इन अ ब्रैकेट ये लिखे, लेकिन अगर आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं, ओके, आप नहीं चाहते कि स्क्वायर ब्रैकेट, तो यू हैव टू राइट इन दिस वे माइनस 36 p square, and then look here, minus into plus minus, and minus into minus क्या हो जाएगा, minus into minus plus, so here you have to write, या another word, अगर different sign है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और अगर सेम साइन तो you have to put plus. Is it clear? सेम वही क्वेश्चन है, हमने सिर्फ क्या किया, हमें फर्स्ट टाइम 6p चाहिए, तो यहाँ हमारे पास 6p नहीं था, हमने 6p को फर्स्ट पे लिया है, जब हम 6p को फर्स्ट पे लाए तो सिर्फ हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई और इसका साइन बाहर निकाल दिया, लेकिन जब हम ओपन करें तो -6p ही होगा, ओके। और फिर हमने क्या किया, हमें +5 चाहिए था, ये देखिए +5 है, तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस का साइन लगा लिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। क्लियर हो गया, यहाँ हम एक और स्टेप करते ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखिए अब हमारे पास क्या रह गया, बाहर आ गया माइनस और अंदर हमारे पास आ गया, देखें 6p, एक बार हमारे पास है +5 और एक बार है हमारे पास 6p -5। नाउ इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया। और फिर वही हमने किया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म, इट इज क्लियर टू ऑल, कोई कंफ्यूजन? ओके, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है पार्ट सी। अब बिफोर डूइंग पार्ट बी, फर्स्ट वी हैव टू डू पार्ट सी, ताकि आपको क्लियर हो जाए और ज्यादा अच्छा। अगेन देखें, s/2 है और इधर सेकंड टर्म में s/2 है, सिंपल हम वही करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ओके। सिर्फ हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। सही हो गया। अब मैंने क्या किया, s/2 है, यहाँ मैंने s/2 लाना है, उसके साथ नेगेटिव है, मैंने यहाँ नेगेटिव का साइन स्टार्ट में रख दिया, ये देखिए, ओके, -s/2। अब मैं जब मैं ओपन करूंगी तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, और ये मुझे +t/3 चाहिए, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, मैंने लॉजिकली साइन में कोई चेंज नहीं किया, सिंपल आई पुट अ कर्ली ब्रैकेट। अब मैं चाहता हूँ मेरी कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, इस माइनस को इस वाले प्लस से मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि इट हैज पॉजिटिव साइन, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। जब मैं इक्वालिटी का साइन लगा लूंगी माइनस, और अब मैं यहाँ लिखूंगी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, s/2 है, ओके। और मेरे पास सेकंड टर्म क्या है, मेरे पास सेकंड टर्म है t/3। अब सिंपल मैंने इसको ओपन करना है, लेकिन जब मैंने ओपन करना है बार वाला माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इट्स बेटर कि मैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लूं, ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मुझे इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, अब पुट माइनस साइन, यहाँ आपने लगाई स्क्वायर ब्रैकेट, आपकी चॉइस, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, कर्ली ब्रैकेट लगाएं, लेकिन एक आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है ताकि माइनस का साइन दोनों से मल्टीप्लाई, ओके। s मल्टीप्लाई बाय s क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, t × t, t स्क्वायर हो जाएगा, और 3 × 3, 3 3 9 हो जाएगा, हियर यू पुट स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने इसको ओपन करना है, वैसे आप यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन आप ओपन करना चाहते हो तो आप इसको ओपन कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस, अब पहले आप क्या लिखोगे, योरी s स्क्वायर, इसको लिख लो, आई जस्ट कॉपी ताकि जल्दी हो जाए, ओके। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और हियर आई हैव टू राइट t स्क्वायर ओवर 9। आई थिंक सो नाउ इट इज क्लियर। Now that B part is also clear and this C part is also clear. ठीक है, अब आपके पास A भी हो गया और C भी हो गया, दोनों एक जैसे हैं कि कैसे आप इस टर्म को चेंज करें, ओके। Now we move towards the B part. हमने A और C कर लिया, B is left over, so we have to move towards B part. Again, it is very much easy. फर्स्ट टर्म 9 आ रहा है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म 9 आ रहा है, सेकंड टर्म 4/5 है, 4/5 क्यों है, यानी हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, तो ये बहुत आराम से आप लिखोगे 9r, और इधर क्या लिखोगे 4/5, 4/5, and then you have to write the variable that is q, okay। अब कितना इजी हो गया, अब सिंपल आपने के पास
फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस प्लस सेकंड टर्म थी। सिंपल आपने किया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब इसको ओपन सिर्फ करना है। 9 9 सा, यस 9 9 सा 81, और आर का आपने क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना। सिंपल यू हैव टू पुट दिस स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्मूले का आएगा। 4 4 सा 16 और 5 5 सा 25, और फॉर्मूले का आ जाएगा क्यू स्क्वायर, बिकॉज क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। दिस इज ऑल बी पार्ट। आई थिंक सो आफ्टर डूइंग सॉल्विंग ए एंड सी, दिस बी इज सो मच इजियर फॉर यू। ऐसे ही है ना? ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द लास्ट पार्ट। ओके, डी पार्ट। Okay, here they gave you, oh, it is lit. It has 3 brackets. Look here. 1, 2, 3. But don't be confused. First, we have to solve first two. जैसे खाना हो, मामा ने इतनी ढेर सारी चीजें बनाई ना, तो पहले आप एकदम तो नहीं सारी चीजें खा सकते हैं ना। ऑब्वियसली पहले आप एक या मैक्सिमम 2 लेंगे, ओके, और उसके बाद फिर थर्ड वन को यूज करेंगे। सपोज अगर आपके पास राइस है और साथ कबाब है या कोई इस तरह की है, तो आप पहले इन 2 को यूज करेंगे, और जो आइसक्रीम है वो आप लेटर ऑन हम यूज करेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो सिमिलरली फर्स्ट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस फर्स्ट टू, u + 2 u - 2। फर्स्ट टर्म देखें दोनों में u है, तो हियर वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म दैट इज u, एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, हियर व्हाट इज द सेकंड टर्म, 2, हियर आई हैव टू राइट 2। और ये जो थर्ड ब्रैकेट है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, u² + 4। इसको मैंने कुछ भी नहीं करना, ये आइसक्रीम है, इसको मैंने फ्रिज में ही रहने देना फिलहाल। नाउ कम्स टू हियर u², तो u मल्टीप्लाई बाय u क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा। सो आई हैव टू पुट हियर u²। सो 2 × 2, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। ठीक हो गया। अब देखो ये मेरे पास क्या, u² - 4, और ये मेरे पास वो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, u² + 4। इसको मैं थोड़ा, इसको भी बड़ा कर लूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक हो गया। ये देखें, ये ऑलरेडी मेरे पास गिवन था, मैंने इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब देखो u² - 4, u² + 4 मीन्स दोबारा ये थर्ड आइडेंटिटी है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। फर्स्ट हम देखें u² है, सेकंड हम 4 है। अगेन वी हैव टू ओपन दिस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, मतलब है हियर यू हैव टू राइट दिस u², and here you have to write this 4. Please, it is clear. u + 2 u - 2, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी है। यू हैव टू ओपन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लें और माइनस का साइन, डिफरेंस का साइन लगाएं, फिर लगाएं सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब हाउ इज यू हैव टू ओपन, u मल्टीप्लाई बाय u, इट इज u² - 2 2 = 4, ओके, एंड हियर u² + 4। अब देखें दोनों फर्स्ट टर्म सेम हो गई है, तो हम अगेन वी हैव टू पुट द थर्ड आइडेंटिटी। देखो ना, फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेटिव है, देन प्लस है, इट अपॉन, चाहे पहले प्लस हो चाहे माइनस हो, या पहले माइनस हो प्लस हो, वी हैव टू यूज द थर्ड आइडेंटिटी। सो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, u² का स्क्वायर लेंगे 4, स्क्वायर इनटू स्क्वायर पावर ऐड होती है। तो याद रखें u की पावर 2 है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, यस 2 + 2 क्या हो जाएगा, u4। तो हियर हम हैव टू पुट द पावर u4 और माइनस फॉर्मूले का 4 4 16। Is it clear? Is it clear? I think so. D part is not a difficult one. It is very much easier, and this one is clear to you. ऐसे ही है ना? Okay. So today we have to do question number 7, 8, and 9. Okay. This is all for today. Then Allah Hafiz.